Children, this is class 3 uh, social studies, and I was just from the beginning I was giving you the lessons from videos. So today we have already finished the first chapter, and today I am starting second chapter. First we have already finished, and exercise work also I have given you, filled up, solved. And today I'm just starting second chapter. This is changes in neighborhood. The first chapter was changes in the family. Now this is changes in neighborhood and school. So in this chapter we will discuss many points one by one, and this is interesting also. So I am starting from here. Learning objectives. These are the points which we are going to, all this is right side and left side, altogether 6 points. Altogether we are going to study these 6 points in this chapter. Changes in lifestyle, food and clothes, etc. Then making new friends, that is, and the third one, changes in transport, reasons for changes, adapting to change, and gender sensitivity. We will discuss all the 6 points one by one. So this is going to be an interesting chapter for you also, because it is related to us and you also as young children. So we will see what all happens, what changes take place in our family, in our especially neighborhood, in school, national, social surroundings, I mean to say, because in the first chapter we have already studied about the family. Now here neighborhood, because out of our house when we go, we meet people in the neighborhood. Children go to school, they meet other children which come from the other families. So we will discuss and we will study all this. And changes, especially change, we will see what all this chapter says. Now I am reading from here. Change is the law of nature. Yes, कि चेंज होना यानी कि बदलाव, एक बदलाव आना जो है वो लॉ ऑफ नेचर है. यानी कि नेचर, ऑल द थिंग्स डू नॉट रिमेन सेम फॉर एवर. सम चेंजेस टेक प्लेस ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ द previous people or life of the people who were living in the 50 years back in our country, their life was different. Some new inventions have come, नए नए आविष्कार आ गए, नई नई चीज़ें आ गई हैं. Now the new generation is using all those new inventions which those old people were not using when they were young and they were little children. So that is called change. I am just giving you an example, है ना. मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का एक नियम है कि उसमें बदलाव ज़रूर होना है. एज़ फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ सीजन्स ऑल्सो टेक प्लेस, है ना. अगर हमारे उसमें चेंज, नेचर में भी चेंज ना हो तो हम लोग परेशान हो जाए, है ना. एक सा वेदर हमेशा रहे, एक सा हालात एक से रहें, एक सा टेम्परेचर रहे, तो वी विल नॉट बी हैप्पी, वी विल बी फेड अप, है ना, कि ये क्या है, सेम थिंग, व्हाई देयर इज़ नो चेंज. वी ऑलवेज वांट सम चेंज. And in some other example I can give you, as for example when you stay at home for a long time you feel boring, है ना. आप कहते हैं we want some change, let us go outside. अभी कोरोना डेज में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हम फॉर द चेंज ऑफ आवर मूड, फॉर आवर हैप्पीनेस वी गो आउट, है ना. कि वी शुड गो, वी शुड, इफ वी हैव ए कार एक्सेट्रा इन आवर होम, वी वांट टू सिट एंड वी वांट टू गो समवेयर. कि कुछ नहीं तो थोड़ी देर के लिए तो जाने, बिकॉज वी वांट चेंज इन आवर मूड ऑल्सो, है ना. और बाहर जाके बहुत अच्छा लगता है. वी ईट समथिंग, वी रोम अबाउट, कुछ घूमते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ सपोज वी गो टू मीट समवन, तो वो अलग बात है. बट चेंज, तो चेंज कम्स इन आवर मूड, इन आवर लाइफ, है ना. कुछ चेंज होता है कि हाँ. एंड इन द सेम वे व्हाट अदर थिंग्स, जो बड़े चेंजेस आते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम इन दिस चैप्टर. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी नेचर का, प्रकृति का नियम है कि चेंज, बदलाव आना ही है. थिंग्स विल नॉट रिमेन सेम फॉर एवर. एज द टाइम एडवांसेज एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स चेंजेस. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जो हमारे यूनिवर्स में, यानी संसार में जो चीज़ें अभी हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है. सो इज़ द केस विद ह्यूमन लाइफ.
यूनिवर्स में चेंजेस आते हैं, यानी संसार में, नेचर में चेंजेस आते हैं, सो इज़ द केस विद द ह्यूमन, और हमारी ह्यूमन लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, है ना। वो आते ही एज द टाइम गोज़ ऑन, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आप छोटे बच्चे हो तो एज द टाइम विल पास आप बड़े हो जाओगे। ये तो है नहीं कि आप जितने बड़े अभी हो वो कई साल तक उतने ही बड़े रहोगे। यू विल ऑल्सो चेंज, चेंज विल कम इन योर लाइफ, चेंज विल कम इन योर होम ऑल्सो, चेंज विल कम इन योर, हो सकता है कि चेंज आपका किसी भी वे में चेंज हो सकता है, ठीक है। वी आर अंडर गोइंग न्यूमरस चेंजेस फ्रॉम पास्ट फ्यू डिकेड्स, येस दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ, कि हमारे जो पुराने ओल्ड पीपल हैं, वो जो 50 ईयर्स बैक की उनकी जो लाइफ थी वो फ़र्क थी जब वैन दे वर यंग। अब नाउ सो मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस, है ना। ये कह रहा है ना, ये लाइन भी कह रही है, वी आर अंडर गोइंग न्यूमरस चेंजेस फ्रॉम आवर पास्ट फ्यू डिकेड इज़ अ सेट ऑफ 10 ईयर्स चिल्ड्रन। डिकेड का मतलब होता है सेट ऑफ 10 ईयर्स। जैसे अभी 10 ईयर्स मीन्स 2001 से 2010 तक का वो एक 1 डिकेड है, ठीक है। फिर 11 से 2020 तक का जो बना वो दैट वाज अनदर डिकेड ऑफ द दिस सेंचुरी। नाउ वी हैव एंटर्ड इन द थर्ड डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी, है ना। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द डिकेड, कहते हैं ए सेट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। ओके, समझिए, ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। आवर लाइफ स्टाइल, क्लोथ्स, फूड, ट्रेडिशंस आर नॉट द सेम एज दे वर ड्यूरिंग आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टाइम। यस, सेम थिंग अगेन दे आर सेइंग, दिस चैप्टर इज सेइंग कि हमारा जो स्टाइल अब है ना, यानी आपका हम लोग कह सकते हैं हमारा जो भी प्रेजेंट है, यंग जनरेशन मान लीजिए, उनका लाइफ स्टाइल, उनके क्लोथ्स, उनके कपड़े, खाना, ट्रेडिशंस आर नॉट द सेम एज दे वर ड्यूरिंग आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टाइम, है ना। जो और ऊपर के लोग थे उनके टाइम में वो ऐसा नहीं था। चेंजेस हैव टेकन प्लेस, सम ऑफ सच चेंजेस हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस लेसन। अब इन चेंजेस के बारे में हम लोग 1 by 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, दिस इज वी कैन कॉल इट नंबर 1, पुट नंबर 1 हियर इन योर बुक ऑल्सो। चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल माने जीने की का तरीका, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हम कैसे क्या, उसमें देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द लाइफ स्टाइल, है ना। लाइफ स्टाइल में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरह के हम उठते बैठते हैं, किस तरह के लोगों से मिलते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारी बातचीत का क्या ढंग है, सो मैनी थिंग्स, किस तरह की चीज़ें हम अपने घर में यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है। दीज ऑल पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन आवर लाइफ स्टाइल। और लोगों का लाइफ स्टाइल एक दूसरे से फ़र्क होता है ना, इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। दिस इज़ ऑल्सो ए पॉइंट कि सबका लाइफ स्टाइल एक सा नहीं होता, कोई किसी तरह से अपने ढंग से लाइफ को जीता है, कोई किसी तरह से जीता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत सारी नई नई मॉडर्न चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते बिकॉज दे कांट अफोर्ड देम, ये भी एक रीज़न हो सकता है ना। मनी का फैक्टर भी इज ऑल्सो देयर, तो सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो अब वी हैव टू सी, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज़ लाइफ स्टाइल, ओके। ना चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में चेंजेस किस तरह से आते हैं, किस किस तरह का वो हो सकता है, जो चीज़ें हमारे लाइफ स्टाइल में आती हैं उनको हम, वो क्या हैं चीज़ें, वी विल सी। इंडियन लाइफ स्टाइल हैज़ ऑलवेज बीन एन एक्साइटिंग टॉपिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्या है इसमें, इंडियन लाइफ स्टाइल यानी हमारे देश का जो लाइफ स्टाइल है, बिकॉज वी हैव सो मैनी स्टेट्स और सो मैनी डिफरेंट ट्रेडिशंस आर देयर, सो मैनी लैंग्वेजेस आर देयर, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्साइटिंग टॉपिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दूसरी दुनिया में, संसार में हमारे देश के बारे में बात होती है, क्योंकि इंडिया का लाइफ स्टाइल एक बड़ा अद्भुत उनको लगता है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, यानी कि विभिन्नता। हमारा पूरा देश एक सा नहीं है कि एक ही रिलीजन के लोग रहते हों, वो एक सा खाना खाते हों, एक से कपड़े पहनते हों, एक से त्यौहार मनाते हों, ऐसा नहीं है। डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑल्सो और अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज ऑल्सो लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की चर्चा होती है, इंडिया की चर्चा होती है कि भाई वो एक बड़ा अलग सा कंट्री है, एंड मैनी पीपल फ्रॉम आउटसाइड और वी कैन से वर्ल्ड वांट टू कम टू आवर कंट्री टू विजिट एंड टू सी एंड टू विटनेस द थिंग्स, देखने के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। with the thousand of year old culture and diverse ancient establishment, Indian lifestyle has always been fascinating. Yes,
बिकॉज हमारे देश का जो कल्चर है, हमारा रीति रिवाज जो है, संस्कृति हमारी है, वो थाउजेंड्स ईयर्स मतलब बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी है। एंड डाइवर्स एंशेंट इस्टेब्लिशमेंट, डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया ना, विभिन्नता। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो भिन्न भिन्न तरह की होती रही हैं। तो एंड इंडियन लाइफ स्टाइल, और हिंदुस्तान के लोगों का रहने का तरीका हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है यहाँ, इट आई हैव रिटन द मीनिंग हियर, चार्मिंग, मतलब अ थिंग विच अट्रैक्ट्स अदर पीपल। ठीक है, फैसिनेटिंग का मतलब ये, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया कि वो लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं हमारे देश के कल्चर से, हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे डाइवर्सिटी से, विभिन्नता। जो एक स्टेट में वो जाते हैं वहाँ फ़र्क तरह का कल्चर देखते हैं, व्हेन दे गो टू द अदर स्टेट दे सी अ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, सो दे आर वेरी मच फैसिनेटेड, यानी वो बड़े स्पेल बाउंड हो जाते हैं, बड़े मतलब वो हो जाते हैं कि फैसिनेटिंग माने उनको बड़ा वो अपनी ओर खींचता है वो चार्म, बिकॉज चार्मिंग चीज़ें जो होती हैं वो हमें खींचती हैं, अपनी तरह आकर्षित करती हैं ना। तो दैट इज़ वाई दिस वर्ड इज़ कॉल्ड, दिस वर्ड इज़ हियर फैसिनेटिंग। इन रिसेंट टाइम लाइफ स्टाइल हैज़ बीन ए ह्यूज शिफ्ट दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मॉडर्न रूटीन्स इन अपब्रिंगिंग। अब आज के समय में वो जो है लाइफ स्टाइल है, जो वो मॉडर्न चीज़ें उसमें बहुत सारी आ गई हैं। आज के जो लाइफ चल रही है बच्चों की, उसमें बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं। ओवर द ईयर्स वी हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम चॉक एंड डस्टर टू टैबलेट्स। अब यू नो व्हाट इज़ टैबलेट? चॉक एंड डस्टर क्या है कि पहले पढ़ाई सिर्फ चॉक डस्टर से ही होती थी क्लास में, लेकिन अब दूसरी चीज़ें, टैबलेट एक होता है, जैसे कि आपने मोबाइल देखा होगा, उसी का आई कैन शो यू चिल्ड्रन, दिस इज this is a tablet. You can see this is such a big, है ना, it is big like a computer screen, है ना, this is called tablet. Okay, I'm keeping it other side. So टैबलेट आ गया है, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो ईज़िली हम उसको हैंडल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो सॉल्व कर सकते हैं उसकी विद द हेल्प ऑफ द टैबलेट। का मतलब यहाँ वो दवाई की टिकिया से नहीं है। टैबलेट ये है, आपने आपके घर में भी होगा, पूछिएगा कि टैबलेट कैसा होता है अगर आपने नहीं देखा। इट वर्क्स लाइक ए कंप्यूटर, और इट्स स्क्रीन इज़ बिगर दैन द मोबाइल्स फ़ोन। ओके, बड़ा होता है। टुडे स्मॉल चिल्ड्रन नो हाउ टू कनेक्ट द आईपैड एंड वाईफाई। आज के बच्चे जानते हैं, यू ऑल आर स्टडिंग इन दीज डेज इन ऑन द ऑनलाइन बेसिस, है ना। आप खुद इसमें से बहुत से बच्चे, अभी तो आप ठीक है तो थोड़े छोटे हो, जब आपसे थोड़े भी बड़े हैं, दे नो हाउ टू कनेक्ट। जब क्लास स्टार्ट हो रहा है, हाउ टू कनेक्ट देमसेल्व्स विद द क्लास, जूम क्लास, है ना। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द वाईफाई। ठीक है। सेवरल स्कूल अक्रॉस इंडिया हैव मेड ए टैबलेट कंपल्सरी इन स्कूल कैरिकुलम। उन्होंने टैबलेट को एक कंपल्सरी वो बना दिया है कि बच्चों के पास टैबलेट होना ही चाहिए, जैसे वो ईज़िली कुछ चीज़ों को सॉल्व कर लें उसके ऊपर, या कुछ उन्हें दिया जा रहा है तो जल्दी से टैबलेट के थ्रू उस चीज़ को देख लें, विच इज़ गिवन बाय द टीचर्स और बाय द स्कूल अथॉरिटीज़। ओके, टुडेज जनरेशन इज़ बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट द टेक्नोलॉजीज़। और आज की जो जनरेशन है, एज यू यंग चिल्ड्रन, आप देखा होगा अपने कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी मोबाइल चलाना जानते हैं। शायद बड़े पुराने लोग जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि हाउ टू हैंडल द मोबाइल, इवन यंग चिल्ड्रन नो हाउ टू हैंडल। उसमें कितने कितने क्या क्या है, सारे कुछ वो जानते हैं, दे कैन हैंडल इट वेरी इजीली। सो दिस न्यू जनरेशन इज़ मोर बट बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट द technologies, means this mobile and tablet and everything, this computer is the modern time की चीज़ें हैं ना, modern technologies हैं जो कि पुराने टाइम में नहीं थी। ठीक है। people have become more active in on social network। social network क्या है? यही है कि सोशल क्या हो रहा है दुनिया में हमारे, दैट इज़ कॉल्ड सोशल नेटवर्क, कि उससे जुड़े रहना, उसके बारे में जानना। एंड पर्सनल रिलेशंस आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन और द यंग पीपल दे आर इनग्रॉस्ड इन दैट सोशल नेटवर्क है, माने पूरे समय बिजी हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पर्सनल रिलेशन, यानी कि पहले लोग एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे, वो कम हो रहा है। सो चिल्ड्रन, आई हैव डिस्कस्ड, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। I have taken one this thing, and from in the new if I have my class tomorrow, I will start from here, changes in food. That will be number 2.
Okay, that work will be done tomorrow. Okay, thank you.